Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari. How are you all? Class 8. I hope you all will be fine. So today our science topic is chapter number 3, Biotechnology, lecture number 2. First of all, हम देख लेते हैं रिकैप. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? What is biotechnology? DNA replication, about transgenic organism, about genetic engineering, why do scientists use bacteria in genetic engineering, and what is genetic testing. So objectives. आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है how genes are introduced into a bacterium, explain gene modification in different foods, general application of biotechnology in various fields, and how genes are inserted into a bacterium. So let's start our lecture. How do scientists insert gene in a bacterium? The first step, inserting a gene into a bacterial cell, is the identification and isolation of gene desired protein from donor organism. An enzyme is used to cut the gene from the donor organism. The attached gene of desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA. The recombinant DNA inserted back into the same type of bacterium from which the plasmid was isolated. So किसी भी बैक्टीरियल सेल में जीन को एंटर करने का पहला स्टेप ये है कि पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाए और डिजायर्ड प्रोटीन से आइसोलेट कर लिया जाए, मतलब कि उसको डोनर वाले सेल से अलग कर लिया जाए. एंजाइम किस लिए यूज होता है? एंजाइम यूज होता है जीन को कट करने के लिए डोनर ऑर्गेनिज्म से. अब जो हमने जीन एंटर कर दी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में दूसरे से लेकर, तो डिजायर्ड प्रोटीन और प्लाज्मिड डीएनए जिसमें एंटर की गई है उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए. रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंसर्ट बैक किया जाता है सेम टाइम ऑफ बैक्टीरियम के साथ, जहां से हमने क्या किया था, जहां से हमने आइसोलेट किया था प्लाज्मिड को. ठीक है. The bacterium which takes in the modification and recombinant DNA is called genetically modified bacterium. अब जिस बैक्टीरियम में हमने डीएनए एंटर किया है उसको क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कहते हैं. GM bacterium start divide and produces a bacterial colony. अब यहाँ पे हम देखते हैं how do scientists add gene into a bacterium. ये है हमारे पास डोनर सेल, ये है हमारे पास बैक्टीरियम. बैक्टीरियम में हमने ऐड करना है तो हम इसको क्या करते हैं? एंजाइम की मदद से यहाँ से काट देते हैं. देखिए आपको कटा यहाँ पे कट पीस नजर आ रहा है. जीन कट फ्रॉम डोनर सेल. अब यहाँ से हमने डोनर सेल से जीन काट ली है. ठीक है. प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम एंड कट एट स्पेसिफिक पॉइंट. प्लाज्मिड को भी हमने स्पेसिफिक पॉइंट से काट लिया. यहाँ पे हमने एक प्लाज्मिड का ले लिया और यहाँ पे हमने एक जीन का पीस ले लिया. डोनर जीन अटैच विद प्लाज्मिड. अब यहाँ पे जो डोनर जीन है ये वाली वो प्लाज्मिड के साथ अटैच हो गई है और उसने क्या बना दिया है? जीएम बैक्टीरियम, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम क्या करता है? बैक्टीरिया डिवाइड होना शुरू हो जाता है. Every bacterium of the colony contains a copy of gene of desired protein. When bacterial colony grows, it start make protein under the instruction of inserted gene. अब यहाँ पे ये डिवाइड होना शुरू हो गया है और फिर वो क्या करता है? उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसके मुताबिक ये क्या बनाना शुरू कर देता है? प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स, काफी सारी जो यूजफुल प्रोटीन्स यूज की जाती हैं. कौन कौन सी? इंसुलिन, enzyme for the synthesis of various medicines, vaccines are inserted in bacteria and desired proteins are obtained. Insulin. अब इंसुलिन क्या होती है? In past the insulin extracted from animal pancreas, but now the insulin produced by using the biotechnology techniques. पुराने जमाने में जो है ये पैंक्रियाज से निकाली जाती थी, लेकिन अब ये जो है बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज करके बनाई जा सकती है.
Scientists insert the human insulin in the bacteria to modify them genetically. Then these genetically modified bacteria prepared the insulin. The insulin prepared in genetically modified bacteria is extracted from bacteria colonies and used. The steps of biotechnology for the production of insulin are explained. Okay, students, इंसुलिन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम देखते हैं पैंक्रियास एंड ये है बैक्टीरियम, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पे ली इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, हमने जो है वो पैंक्रियास से ले लिया। यहाँ से हमने इसका एक जीन जो है वो कट कर लिया और यहाँ से हमने प्लाज्मिड को कट कर लिया। अब उस जो कट किया था जीन हमने एंजाइम की मदद से वो हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और उसको मॉडिफाई करा दिया बैक्टीरियम में, जो कि क्या बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। रिकम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम और यहाँ पे बन गया हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब यही बैक्टीरियम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और डिवाइड होकर ये क्या बनाता है, हमारे पास बैक्टीरिया से बनाई हुई क्या बनाता है, इंसुलिन बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। वैक्सीन, ठीक है। अब हम देखते हैं वैक्सीन क्या होती हैं, ठीक। वैक्सीन इज अ मटेरियल व्हिच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस and used to produce immunity against a disease। वैक्सीन क्या होती है, इसमें ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज काजिंग जर्म्स को मारने के लिए यूज होते हैं और हमारी बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी पैदा करती है किसी भी बीमारी के खिलाफ। When a vaccine injected to human body, the blood cells in the body take the weak or dead pathogens as real ones and prepare antibodies against them, ठीक है। सॉरी, वर्ड एंटीबॉडीज है। तो क्या करता है वो, सबसे पहले जो है वो वीक पे अटैक करना शुरू कर देता है और वो जब देखता है कि डेड पैथोजेंस को वो एज अ रियल वंस लेता है और वहां पे उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। These antibodies retain in blood when any real pathogen enters the body। अब वो क्या करता है, ये वो एंटीबॉडीज ब्लड में ही रह जाती हैं। जब कोई भी बैक्टीरिया या डिजीज काजिंग जर्म्स बॉडी में एंटर होता है तो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज उसको क्या कर देती हैं, फौरन मार देती हैं। एंड द बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज और हमारी जो बॉडी है वो किससे, बीमारियों से बच जाती है। हाउ डू वैक्सीन वर्क? Nowadays, biotechnology use bacteria to prepare vaccines. They identify some proteins of pathogens that do not cause disease, but can stimulate blood cells to make antibodies, ठीक है। The genes of such protein is inserted into bacterium। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है। वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं जो कि डिजीज काज नहीं करती और उनको स्टिमुलेट कर देते हैं ब्लड सेल में, किस लिए, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके, ठीक है। तो जो बनाए उनको इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियम में। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलोनीज बना देता है और पैथोजन प्रोटीन्स बना देता है, ठीक है। The proteins act as a vaccine. When these proteins are injected in human body, its blood cell produce antibodies. The antibodies can kill the kind of pathogen from which the genes were taken. In this way, the human becomes safe from the kind of pathogens. Vaccines for hepatitis B, typhoid, measles have been developed using biotechnology. Vaccines of malaria and HIV are being developed. हेपेटाइटिस बी की, टाइफाइड की और मीजल्स की वैक्सीन बना ली गई है और एचआईवी और मलेरिया की जो है वो अभी अंडर डेवलप है, वो बनाई जा रही है। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। In the coming years, most of the commercial application of biotechnology will be in three markets। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड एनवायरमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर में कैसे है, बायोटेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इंप्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स। हर्बिसाइड्स जो होते हैं, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, वीड किलिंग केमिकल and pesticide insect killing chemicals are used to eliminate the crop enemies, weeds and insects. Such chemicals also carry and change the crop plants. Using biotechnology,
Scientists insert weed resistant and pest resistant genes in the plant. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो ऐसे केमिकल जो कि वीड रेजिस्टेंस होते हैं और पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो प्लांट्स में डाल देते हैं। उससे क्या होती है, उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उनकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाता है। Cultivation of such genetically modified crop improve the quality of crops and make them safe for human use. The major crops that have been modified are maize, wheat, rice, canola, potato, soybean and cotton. ठीक है, अब मेडिकल की फील्ड में ये कैसे काम करती है? मेडिकल की फील्ड में जो है वो काफी सारी जो है वैक्सीन डेवलप होती हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंड्रोफिन, इंटरफेरोन, ये सारी क्या है, उसकी एग्जांपल है जो कि मेडिकल की फील्ड में हमें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प करती है। एनवायरनमेंट में ये कैसे काम करती है? एनवायरनमेंट प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन, degradation of land and sewage water are also resolved using biotechnology. Microorganisms जैसा कि genetically modified bacteria are used to treat sewage and refuse. They may also be used to clear spilled oil. Microbes which are used as biopesticides, biofertilizers, biosmurds are being developed using biotechnology techniques. ठीक है, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन में भी काम आती है। यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन एनिमल्स इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क एंड मीट। Production of better quality fruits and vegetables, increasing the shelf life are also due to using biotechnology techniques. Vegetables में better quality fruit के लिए बताई जाती है, goat meat के लिए, meat producing animals के लिए और milk producing animals में भी जो है वो biotechnology help करती है। एप्लीकेशन में और हमारे पास आ जाती है जीन थेरेपी, रिप्लेस डिफेक्टिव जीन्स जो है वो फंक्शनल के साथ रिप्लेस कर दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज यूज्ड टू इनहिबिट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए काम करती है। कैंसर थेरेपी वन मेथड इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। वैक्सीन बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन बायोटेक्नोलॉजी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है व्हाट इज जीन थेरेपी या फिर जीन थेरेपी। Gene therapy gives patient a healthy version of a defective gene. यहाँ पे आप देखें सेल हैज डिफेक्टिव जीन, ये सेल के पास डिफेक्टिव जीन है। हेल्दी पेशेंट की जीन यहाँ से हमने ली है और इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है डिफेक्टिव के साथ। अब क्या हुआ है, सेल फंक्शन इज रिस्टोर्ड। सेल का जो फंक्शन है वो दोबारा से रिस्टोर हो गया क्योंकि वहाँ पे हेल्दी जीन जो है इंसर्ट कर दी गई है। Gene therapy is an advanced biotechnological technique which is used to cure genetic and acquired diseases. ये genetic diseases के क्योर के लिए इस्तेमाल होती है like cancer and AIDS. In this process, defective genes are supplemented or replaced by normal genes. इसमें जो है वो defective gene को healthy gene के साथ replace कर दिया जाता है। प्रिंसिपल देखें इसका जीन थेरेपी का, थ्योरोपैटिक ट्रांसजीन, यहाँ से टारगेट सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, हमने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया और हमारे पास आ गया थ्योरोपैटिक प्रोटीन। ओके, जेनेटिक टेस्टिंग। अब हम देखते हैं जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है। इज वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक यूज्ड फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेंट डिजीजेस। ये देखने के लिए कि कौन सी बीमारी किसी खानदान में या किसी फैमिली में जो है वो विरासती है, उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। डीएनए का एग्जामिनेशन किया जाता है, डीएनए का मुआयना किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन अ चाइल्ड आइडेंटिटी ऑन अ पर्सन एंसेस्ट्री। क्लोनिंग। Now, question is what is cloning? Cloning is also among the latest biotechnological techniques used in various types of genetic analysis. ठीक है, जो है ये सबसे मोर एडवांस टेक्निक है और बहुत से एनालिसिस में यूज होती है। होती क्या है, क्लोनिंग वन ऑर्गेनिज्म इज मेड दैट इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर। ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनाई जाती है। Animal cloning can be used for production of animal organs and strong, well-built livestock for quality production of milk and meat. सबसे पहले जो है वो क्लोनिंग जो है वो एनिमल्स पे की गई है। डोली शीप का नाम था जिसकी सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी, शीप थी वो,
और उसकी क्लोनिंग की गई थी और उसकी बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल कॉपी जो है वो बनाई गई। तो ये लेक्चर था। नाउ हियर इज योर असेसमेंट। ये आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और इसको लर्न करेंगे। व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए, define enzymes, what is insulin, what are genetically modified organisms, define vaccine, name at least 2 life-saving products of biotechnology, briefly describe gene therapy, define gene therapy, and define cloning. So students, ये आपका लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।